Dear students, welcome you back in my Instagram page or in my YouTube page where I used to prepare the short tutorials of microeconomics or of microeconomics in Instagram page, or as far as the deep material is concerned, I used to prepare in my YouTube channel, which link is being given in my Instagram bio. So this content I used to prepare by keeping this thought in my mind that the students who are facing the problem by scrolling the books of the different authors, but however they are not in a situation to understand how to write, how to explain, how to be logical, and how to do the analysis of each topic which is totally connected with the economics. So in order to make the study material ease for the students, I used to prepare the all contents in my YouTube channel as well as my Instagram page. So this content I am not only providing for the 11th standard or for the 12th standard, but also preparing for the students who are preparing for the UG, PG, CUET, NET, or often any competitive examinations in a stream of the economics. So you can enjoy of this live tutorials as well as the lengthy materials. You can visit my YouTube page. So today I am going to start a new topic, which is the break-even point, diseconomies and economies of scale, or the returns to scale. So firstly, I would like to start with the new topic, that is the return to scale, which is the important part of the cost analysis. I am going to take the new topic, that is the return to scale, which is a more important part of the microeconomics. Return to scale, as the name suggests. For example, if you are doing some business, the business you will be do in such an anticipation to get some profit by hook or by crook. So that term is known as a return to scale. फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आप ओबियसली यही चाहेंगे कि उस बिजनेस का आपको मुनाफा मिले. अब वो मुनाफे के क्या पैमाने होते हैं, उसकी चर्चा हम इस इंस्टाग्राम पेज पे एक छोटे से ट्यूटोरियल्स के थ्रू, जो कि मैं रील्स के फॉर्म में बताती हूँ, उसे प्रेजेंट करेंगे. और यदि आप डीपली चाहते हैं इन सारे नोट्स के बारे में और ये सारे कंटेंट के बारे में और इसे अच्छे से समझना चाहते हैं विद द लाइव एग्जांपल्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल्स पे विजिट कर सकते हैं. स्पेशली ये चैनल स्टूडेंट्स के लिए है जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर 11th क्लास, 12th क्लास, यूजी, पीजी, CUET, है ना, UGC NET, Rajasthan Public State Services, as well as the students who are preparing for the examination of the RAS, IS, and this syllabus is majorly covering the part of microeconomics as well as the macroeconomics, जिसमें मैं छोटे छोटे जो शॉर्ट्स होते हैं वो इंस्टा पे डालती हूँ, और इसका जो डीप स्टडी मटेरियल है टॉपिक वाइज, जो कि मैं अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करती हूँ, वो मैंने अपने यूट्यूब पेज पे दे रखा है. तो स्टूडेंट्स, यदि आप इसका एडवांटेजेस लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसका एडवांटेज ले सकते हैं. ओके, तो रिटर्न टू स्केल हम लोगों ने जैसा कि समझा है कि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको रिटर्न के क्या क्या पैमाने मिलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल. अब चूँकि इकोनॉमिक्स में सुनने में काफ़ी टफ लगता है, लेकिन जब इन सारी चीज़ों को हम हमारे बिजनेस पैरामीटर से समझने की कोशिश करेंगे तो यह बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी. शायद इसीलिए मैं सारे टिपिकल कंटेंट को बहुत ही लाइव एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ. आशा करती हूँ कि आप इसकी एडवांटेजेस ले, जितनों तक भी पहुँचे, चाहे 1 को पहुँचे, 2 को पहुँचे, आप ज़रूर पढ़ें और एडवांटेजेस लीजिए. ओके, सो टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, सेकंड होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और थर्ड होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इसे हम लोग बहुत ही ईजी शब्दों में समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव ओपन सम स्टार्टअप
In an initial phase, it is not necessary that you will be get a lump sum profit. आपने आज बिजनेस डाला है और आप ये सोचते हैं कि मुझे आज हाथों हाथ प्रॉफिट मिल जाए, तो इट इज़ मेयरली योर हेलुसिनेशन, इट इज़ मेयरली योर डिल्यूजन। एक छोटे से टाइम पीरियड में आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिले, ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी हायरार्की से होके गुजरना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यदि मुझे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं या मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ और मुझे रेवेन्यू उसके कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं अपना बिजनेस ठप कर दूँ? क्या मैं अपना बिजनेस बंद कर दूँ? नहीं। स्टार्टिंग के फेज़ में ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में इतनी कोर कॉम्पिटेंसीज़ नहीं होती है, आपको मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में नॉलेज नहीं होता है, आपके प्रोडक्ट की ब्रांड मार्केट में डेवलप नहीं हो पाती है, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के प्रति हैंडी नहीं होते हैं, है ना। और एक इनिशियल फेस में किसी भी चीज़ को जमने में टाइम ही लगता है। अब आप ये सोचें कि मैंने आज बिज़नेस डाला है और कल मुझे बहुत मुनाफा मिल जाए, तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को अपनी जगह बनाने के लिए समय लगता है। तो स्टार्टिंग में जब भी आप कोई भी स्टार्टअप लॉन्च करेंगे तो यू विल हैव टू फेस फ्रॉम द डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। उस डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल्स में आपका जो फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो तो लगता है ज़्यादा, मीन्स आपको ज़्यादा पैसा ज़मीन पे खर्च करना पड़ेगा, कैपिटल पे खर्च करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स पे खर्च करना पड़ेगा, R&D में खर्च करना पड़ेगा, मार्केट एनालिसिस पे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने यदि 10 लाख लगाया है तो आपको हाथों हाथ 10 लाख मिले। हो सकता है आपको 0 रुपया मिले, हो सकता है आपको कुछ भी मुनाफा ना मिले। लेकिन उस सिचुएशन में आपको हार नहीं माननी है, आपको धीरे स्पॉन्टेनियसली अपने प्रोडक्ट पे वर्क करना है, क्वालिटी पे वर्क करना है, मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली चलना है, आधुनिक जो तकनीकी है उसे फॉलो अप करना है और इस तरीके से आपको मार्केट में स्टैंड करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके पैमाने की किफ़ायतें बढ़ती जाएगी। तो स्टार्टिंग में एक एंटरप्रेन्योर को होते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जिसमें उसकी इनपुट कॉस्ट मीन्स जो वो पैसा लगाता है वो ज़्यादा होता है और रिटर्न होता है कम। यहाँ एक एंटरप्रेन्योर ने एक स्टार्टअप डाला है जिसमें उसने 10 लाख रुपया लगाया, लेकिन उसको रेवेन्यू केवल 6 लाख का ही हुआ, 4 लाख का उसे लॉस हुआ। आई मेरी बात समझ में? लेकिन अब चूंकि ये इनिशियल फेस है ना, वो धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है और आगे मूव ऑन करने की कोशिश करता है। चूँकि ये जो मॉडल है ये उन्हीं लोगों के पास होता है जिनके पास जो कि रिस्क ले सकते हैं और उस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए उनके पास काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। वरना जो रिस्क नहीं ले सकते हैं वो कोई स्टार्टअप भी नहीं खोल सकते और वो कोई बिजनेस भी नहीं खोल सकते। तो उस सिचुएशन में डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में ही वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं और लॉकडाउन पे चले जाते हैं। लेकिन ये एक एंटरप्रेन्योर इस फेसेस को जब भी फॉलो अप कर पाएगा जब उसके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होगी। अब क्या होता है, धीरे धीरे वो मार्केट्स में आगे बढ़ता है, मार्केट में उसके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी होती है, उसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ती है, डिमांड के अकॉर्डिंगली वो सप्लाई करता है ना। और क्या होता है, मार्केट में उसकी कुछ इमेज बनती है ना, मार्केट में उसको एक ब्रांडिंग बनती है, उसका मार्केट पेनिट्रेट होता है। तो धीरे धीरे उसे क्या होते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होते हैं। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में वो होता है कि जहां अब वो 10 लाख रुपए लगाता है तो अब उसे लॉस नहीं होता है, उसे होता है प्रॉफिट। मीन्स 10 प्रॉफिट भी नहीं कह सकते हैं, यदि 10 लाख रुपया लगाता है तो उसे 10 लाख के बराबर उसे रेवेन्यू मिल जाता है। तो उसे थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है कि चलो यार, मेरे को 1 साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, 2 साल में मैं डाउनफॉल में गया, तीसरे साल में मैं डाउनफॉल में गया, चौथे साल में डाउनफॉल में गया, लेकिन उसने पेशेंस रखा, उसने अपने प्रोडक्ट पे वो वर्क करते गया तो एक ऐसा टाइम आ गया कि उसे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिले। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई किसी गोल को फॉलो करते हैं या कोई मिशन को फॉलो करते हैं तो हर चीज़ अपना टाइम लेती है और जितना चीज़ें अपना टाइम लेती है वो उतनी ही शेप्ड बनती है। तो उसी तरीके से किसी बिज़नेस को आपको शेप आउट करना है तो आपको इन पैमाने की किफ़ायतों से तो होके गुजरना ही पड़ेगा। अब क्या होता है, वो जितना रॉ मटेरियल लगाता है, जितना भी ज़मीन खरीदता है,
जितना में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है उसके बराबर का उसे मुनाफा मिलता है। तो मीन्स यदि वो 10 लाख रुपया लगाता है तो उसे मिल जाता है 10 लाख। तो इसे कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब क्या आता है, उसे थोड़ी हिम्मत आती है, उसे ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ यूनिक कर रहा हूँ, और इस बेसिस पे वो आगे वर्क करता रहता है क्योंकि अब उसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलने लग जाता है, जो उसे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में बिल्कुल भी नहीं मिलता था। लेकिन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के वक्त उसने पेशेंस रखा, उसने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे वर्क किया, उसने सेल्फ एनालिसिस करके हर दिन R&D करके अपने प्रोडक्ट को इस मुकाम पे पहुंचाया कि वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल तक पहुंच गया। लेकिन अब क्या होता है, उसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा सा मार्केट भी फेवर में हो जाता है। अब क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है, प्रोडक्ट में कभी उसकी डिमांड बढ़ जाती है, मार्केट में वो ऐसी कुछ कॉम्पिटेंसीज हायर कर लेता है, मार्केट में उसे मोनोपोली हायर हो जाती है। तो वो जहाँ अपनी कम प्राइजेस में अपने प्रोडक्ट को बेचा करता था, आज वो हाई प्राइजेस में अपने प्रोडक्ट को बेचता है। डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है कि प्राइस बढ़े चाहे घटे, मैंने प्रोडक्ट इस कंपनी का लेना है तो लेना ही है। तो इस सिचुएशंस में ही इज़ बिकम द प्राइस मेकर। सो आज हम लोग देखें कि जो जितने भी हाईएस्ट मोनोपोलिस्ट हैं, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में मोनोपोली हायर की है, चाहे वो डोमिनोज हो, चाहे वो KFC हो, चाहे वो इंडियन रेलवेज़ हो, या जो कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में मोनोपोली को हायर किया है, वो सब इन सारी पैमाने की किफ़ायतों से होके गुजरे हैं। कभी उन्हें डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हुए, कभी उन्हें कॉन्स्टेंट्स हुए, और लॉन्ग टर्म में उन्हें होने लग गए इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, ये कंपनीज ऑलवेज मुनाफे में ही जाती है, मुनाफे में जाती है। कंपनी बिकम्स अ मोनोपोलिस्ट, company becomes the price maker, company can rule the market, and the demand of the customers for the company's product has become inelastic. Either the price of the product increases or decreases, it doesn't affect the demand of the customer. But for reaching in this stage, which I am going to tell you that is an increasing returns to scale, is that it takes a lot of time. It takes a huge investment of the time, huge investment of the knowledge, huge investment of the patience, huge investment of the continuously motivation, huge investment of the R&D, and huge investment of the daily new terminology and technology to upgrade themselves or to be work accordingly to the market demand. तो इसी के ज़रिए वो बन जाती हैं increasing returns to scale entrepreneur used to incur. तो यही था हमारा कॉस्ट एनालिसिस का रिटर्न्स टू स्केल। चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं इसके डायग्राम्स की। आपको यदि डीप में स्टडी करना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, और यदि फिर भी समझ में कोई दिक्कत आता है तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के ज़रिए आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेटेस्ट यदि किसी भी एग्जामिनेशंस में, स्पेशली वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, इफ़ यू वांट सम हैंडमेड PDFs यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। ओके, सो चलिए, अब इकोनॉमिक्स क्या होती है, हर चीज़ को डायग्राम से जस्टिफाई करती है, क्योंकि यहाँ हम बोलने पे विश्वास नहीं करते, यहाँ हम विश्वास करते हैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन पे, और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में एक इकोनॉमिस्ट अपनी भावनाओं को डायग्राम के थ्रू शो करता है। तो चलिए अब हम लोग इसके डायग्राम्स के बारे में स्टडी करते हैं। आपको एग्जाम्स में यदि आए तो आपको इसका डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद आपको इसका आउटपुट रिप्रेजेंट करना है। उसी तरीके से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है कि आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, रेवेन्यू ज़्यादा मिलती है, कॉस्ट कम होती है ना। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होती है, आपको इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगती है, आपकी आउटपुट कम होती है, और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में आपकी इनपुट कॉस्ट इक्वल्स टू होती है आउटपुट कॉस्ट के। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डायग्राम्स बताया है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का, जहाँ आपका ग्राफ बढ़ रहा है, मीन्स योर आउटपुट इज मोर देन इनपुट। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में योर मार्जिनल कॉस्ट इज योर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, और इन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में योर टोटल रेवेन्यू इज less than total cost. Okay, so if I want to portray the individual diagrams of the increasing, decreasing and constant returns to scale, which is that is constant returns to scale means
as much input cost is increasing, correspondingly output is increasing. Increasing returns to scale, your output is increasing is in high quantity as compared to the cost, and in decreasing returns to scale, your input cost is increasing much more than your output. So that is the explanation of the returns to scale.